Let us do another question related to the liquidation of a company. Now, in this question, the money that is available with us will be less and the liabilities will be more. And we have another option to collect the money, that is, on certain shares, some money is still unpaid. So, we can call that money on those shares. So, first, we'll have a look at the statement of the question and then we will see how we actually make use of this money. The following are the assets and liabilities of Dry Ice Limited on 30th June 2012 when the company was wound up. Fixed assets 15,000, trade receivables 12,000, inventory 10,000, creditors 40,000, capital 400 shares of rupees 50 each fully paid up and 800 shares of rupees 50 each, rupees 25 per share paid up, and overdraft against collateral securities of 6% mortgage debentures rupees 5,000. So we have two types of shares. Although the value of the shares is rupees 50 only, but on 400 shares the entire value is paid. 400 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा 50 रुपये पे कर दिया है और 800 शेयर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू तो 50 रुपये है लेकिन अभी तक हमें जो पैसा मिला है वो 25 रुपीज़ है. Then we have the assets were realized by the liquidator, rupees 10,000 from fixed assets, 10,000 from trade receivables, 11,000 from inventory. There being deficiency of assets for meeting the claims of the creditors, a call is made on the contributories sufficient to enable the liquidator to pay the creditors in full and also to meet his expenses and remuneration, which amounted to rupees 1,825. The call is realized in full and creditors are also paid in full. Interest on overdraft up to the date of discharge amounted to rupees 175. The creditors included rupees 600 for rates for the quarter ended on 30th June 2012 and rupees 3,000 for wages and salaries for June 2012. The winding up is completed on 23rd February next. Prepare statement of liquidators, receipts and payments. So again the question remains the same. We have to prepare the liquidator statement of account. But what we have to see here is that whether the money that we have gathered by selling the assets, whether it is sufficient to pay all the liabilities or not. एंड इफ़ इट इज़ नॉट सफिशेंट देन व्हाट ऑप्शन डू वी हैव. अगर जो असेट्स को बेचकर हमें पैसा मिला है वो सफिशेंट नहीं है हमारे जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के लिए, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे. वो क्या है? दैट इज़ कि जो शेयर्स अभी पार्टली पेड हैं, 50 रुपये का जो शेयर है जिस पे अभी तक 25 रुपया सिर्फ आया है, उससे हम पैसा मंगवा सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. और उस पैसे से हम बाकी की जो बची हुई हमारे ड्यूज़ हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करेंगे. बट हाउ वी डू दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ अपीयर्ड ट्वाइस इन द MDU एग्जाम्स. तो इसको हम थोड़ा सा एक पॉइंट है जो ध्यान से समझने का है. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्टेप्स. बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं कि जो पैसा रियलाइज़ किया है वो लिखिए यहाँ पे. फिक्स्ड असेट से आपको 10,000 मिला, ट्रेड रिसीवेबल से 10,000 मिला, इन्वेंट्री को बेचकर 11,000. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 31,000. ठीक है. सो लेट अस लीव दिस सेकेंड पार्ट. ऑल्दो आई हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन बट हाउ वी अराइव एट दिस वैल्यू दैट वी हैवंट रिटन हियर. राइट. सो दैट वी आर गोइंग टू शो इन द वर्किंग. अभी इतने असेट्स हैं हमारे पास. फिर आपके पास जो है जो आपको पेमेंट्स करनी है वो क्या क्या है कि आपको बताया गया है कि लिक्विडेटर का जो रेमुनरेशन है और जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है वो मिलाकर कितने हैं? 1,825. सो 1,825. देन बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, उसके साथ आपने एक कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया हुआ है डिबेंचर्स को. उससे आपके इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर असेट के ऊपर चार्ज होता तो हम कहते कि असेट्स में से पहले उनको पैसा जाएगा. सो असेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जस्ट एक एडिशनल सिक्योरिटी दी हुई है आपने डिबेंचर्स के फॉर्म में. दैट डजंट अफेक्ट आवर आंसर. वो ओवरड्राफ्ट हमें पे करना है. लाइबिलिटी कितने की है? 5,000 की. साथ में उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी है वो है 175. सो द टोटल बिकम्स 5,000 + 175, 5,175. एंड देन वी हैव द
थर्ड पेमेंट दैट विल बी मेड टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो होते तो अनसिक्योर्ड है, मतलब उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उनका पहला राइट आता है. तो जो भी हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ को जो हमें पेमेंट करनी होती है, सरकार को जो पेमेंट करनी होती है, टैक्सेस, रेवेन्यू, वो सारे हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं. तो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि जो 30 जून को आप लिक्विडेशन कर रहे हो, 30 जून को जो हमने स्टार्ट किया लिक्विडेशन, उस डेट को 600 रुपये जो है वो रेट्स यानी कि टैक्सेस जो पे करने हैं वो ड्यू हैं, और वेजेस और सैलरी कितनी ड्यू है? 3000. तो 3600 ये आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए. तो वी हैव रिटन हियर टू बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3600, 600 रेट्स और 3000 वेजेस और सैलरीज. फिर बाकी के जो बच गए आपको क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू दी हुई थी. क्रेडिटर्स वर 40,000. तो 40,000 में से आपने ये जो प्रेफरेंशियल वाले थे वो माइनस कर दिए. सो वी आर लेफ्ट विद 36,400. सो 36,400 आर योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है. देन वी हैव बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये कैसे आई हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. सो हाउ वी अराइव एट दीज वैल्यूज, वी विल शो इट विद द हेल्प ऑफ द वर्किंग्स दैट वी विल डू हियर. तो इसमें देखिए आपके पास जो टोटल पैसा था वो कितना था हमारे पास? दैट वाज 31,000, जो हमने असेट्स को बेचकर रियलाइज किया था. असेट से हमें कितना पैसा मिला? 31,000. इसमें से हमने जितनी पेमेंट की, जो अगर हम ये मान लें, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पैसा हमारे पास है वो सफिशेंट नहीं है, और जो हमारी कॉल्स ड्यू है वो हमें मंगवानी पड़ेंगी. तो कॉल्स ड्यू हैं कितनी हमारे पास? शेयर्स तो हैं 50 रुपये के, उसमें से 800 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 25 रुपये दिया हुआ है, और 400 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा 50 रुपये दिया हुआ है. तो जिसने पूरे 50 रुपये दे दिए उससे तो आप कुछ नहीं मंगवा सकते. जो बचे हुए 800 शेयर्स हैं उनसे हम मंगवा सकते हैं, ठीक है. तो बचा हुआ जो हम अमाउंट कॉल करेंगे, जो कॉल्स ऑन शेयर्स, वो 25 रुपये हम मंगवा सकते हैं. 25 रुपीज़ ऑन 800 शेयर्स. तो इनसे जब ये पैसा आ जाएगा, 800 शेयर पे अगर 25 रुपये हमारे पास आ जाता है तो और कितना पैसा आ जाएगा? 20,000, ठीक है. तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, इसलिए हम कॉल करेंगे, राइट. सो वी विल मेक अ कॉल ऑफ दिस मनी. तो अब हमारे पास कितना पैसा आ गया? 51,000. 51,000 अब कलेक्ट हो गया. इसमें से हम ये सारी पेमेंट करेंगे. लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन, एक्सपेंसेस प्लस रेम्यूनरेशन 1825. बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट इंटरेस्ट मिला के 5175. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है 3600. देन वी हैव द unsecured creditors. The unsecured creditors are 36,400. Then this total value when we arrive at this is 47,000. ये जो टोटल खर्चा हमारा हो गया वो कितना है? 47,000. तो 47,000 में से भी अब पूरा खर्चा करने के पास हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा? 4,000 रुपये, ठीक है. अब ये जो 4,000 है वो किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. जो सारे खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है दैट गोज टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट. तो ये 4,000. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं कितने? सो वैल्यू पर शेयर, पेमेंट पर शेयर क्या हो जाएगी? पर शेयर इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 800 और 400. 400 वो जिन पे पहले से पूरा पैसा आया हुआ था, और जो 800 अभी उनके ऊपर हमने 25 रुपये कॉल किए. तो अब सारे फुल्ली पेड हो गए हैं. अगर सारे फुल्ली पेड हो गए हैं तो सब में बराबर बटेगा ये पैसा. 4,000 को जब आप 1200 से डिवाइड करेंगे तो हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितना आएगा? 3.33 रुपीज़. तो 3.33 आपको सबको लौटाना है, राइट. नाउ देखिए एक पॉइंट है जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो समझने का है. अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, जो 800 शेयर्स हैं, उस पर अभी हमने पैसा कॉल करना है. कितना? 25 रुपये, ठीक है. 25 रुपये हम उनसे मंगवाएंगे,
और बाद में हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारे पास पैसा बच रहा है जिससे कि हम 3 रुपये 33 पैसे उनको लौटाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें उनको 3 रुपये 33 पैसे लौटाना ही है तो क्यों ना हम उनसे नेट अमाउंट ही मंगवा लें। तो पहले हमने कैलकुलेशन करके देख ली कि अगर हम उनसे पूरा पैसा मंगवाते हैं तो लास्ट में हमें उन्हें वापस लौटाना पड़ता है 3 रुपये 33 पैसे। तो ये 3 रुपये 33 पैसे लौटाने की बजाय, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया, आगे तो हमने इस पैसे का कुछ करना नहीं है, तो जो 25 रुपये पहले दे रहा है और बाद में हम उसे 3 रुपये 33 पैसे वापस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उससे शुरू में ही 21 रुपये और 66 पैसे या 67 पैसे मंगवा लें, ताकि बाद में हमें उसे कुछ ना देना पड़े। दैट इज बेटर, ठीक है। तो हमें एक आदमी से पहले 10 रुपये लेने हैं और फिर उसे 2 रुपये देने हैं, तो हम उससे 8 रुपये ही जो है लेंगे, बिकॉज वी नो कि हमें वापस देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले जिन शेयर होल्डर्स से 25 रुपया ड्यू था, अगर हम पहले उनसे 25 रुपये मंगवाएं और फिर बाद में उन्हें कुछ पैसा लौटाएं, तो बेटर ये है कि जो बैलेंस बचता है, नेट अमाउंट बचता है, वही हम कॉल करें। और वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि जो हमने लास्ट में उनको 3 रुपये 33 पैसे देने थे, वो पहले ही हमने माइनस करके कॉल मंगाई है। सो दिस 21.667 कैसे आया? दिस इज 25 माइनस जो 25 रुपये हमने उनसे मंगाने थे, माइनस जो उन्हें वापस करना था, वो हमने पहले ही माइनस करके कॉल किया है, ताकि बाद में हमें उन्हें कुछ ना लौटाना पड़े, ठीक है। लेकिन जो वो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पूरा पैसा स्टार्टिंग से ही दिया हुआ है, जो 400 शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको तो हमें पे करना पड़ेगा, उनका जो ड्यू है वो 3.33, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो पेमेंट की जाएगी लास्ट में जो बची है बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिर्फ 400 शेयर्स को किया है हमने, क्योंकि 800 का तो हमने यहीं पे सेटल कर दिया। उनसे 25 रुपये मंगवाने की बजाय हमने उनसे 21 रुपये और 67 पैसे मंगाए, ताकि उन्हें बाद में हमें कुछ ना देना पड़े। अभी कौन बच गया? वो 400 शेयर होल्डर जिन्होंने स्टार्टिंग से ही पूरा पैसा दिया हुआ है, तो उनको तो अपने 3 रुपया 33 पैसा मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 400 लिखा है बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, और ये कितना हो जाएगा? 3.33 इंटू 400, जो आपका आ जाएगा 1334, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो दिस। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो इसमें समझने का या अंडरस्टैंड करने का, कि जो पहले पैसा लें और बाद में दें, तो इससे बेटर है कि नेट अमाउंट ही हम पहले ले लें, तो फिर हमारा अकाउंट सेटल हो जाएगा, बिकॉज वी आर क्लोजिंग द बिजनेस, सो देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। हालांकि उनसे 25 रुपये हमने लेना है, तो 25 रुपये में से हम उतना ही लेंगे जितना कि फाइनल सेटलमेंट करने के लिए ज़रूरी है, बजाय इसके कि पहले सारा पैसा लें और बाद में बचा हो उन्हें वापस करें। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस calculation, right? So this was about this question. Now there is another important point which I want to mention here, कि जो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, जिसमें कि हमें प्रेफरेंस देते हैं उनको पेमेंट में, तो उसमें एक पार्टी का जो अमाउंट है दैट कैन नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़, ठीक है। मान लीजिए एक वर्कर की सैलरी ड्यू है, जो आपका एम्प्लॉई है उसकी सैलरी ड्यू है और उसका अमाउंट बनता है 24,000 रुपये, तो उसमें से हम जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान सकते हैं वो 20,000 तक ही मान सकते हैं। तो बाकी का ये नहीं है कि बाकी के 4,000 देने ही नहीं है, तो बाकी का जो 4,000 है वो क्या माना जाएगा? अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ जुड़ जाएगा, राइट। सो ये जस्ट टू शो कि प्राथमिकता कितने तक मिलेगी, उसे 20,000 तक ही मिलेगी, और उसके बाद का 4,000 बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जुड़ जाएगा। तो इसे ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि मान लो अगर पहले बाद में पैसा नहीं बचता है तो क्या करेंगे? तो पहले 20,000 तो देंगे उसको, बाकी का 4,000 अगर बचेगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, राइट। सो दिस इज द मीनिंग। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको ये यूज होगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू अगर एक पार्टी की 20,000 से ज़्यादा बन रही है, अगर 2 वर्कर हैं तो दोनों का 20,000 उनको प्रेफरेंशियल माना जा सकता है, जो एक्स्ट्रा 4,000 8,000 कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा? अनसिक्योर्ड या अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। सो कुछ क्वेश्चंस में आपका एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, सो यू कैन टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस।